Fine, yeah. Good morning. स्टार्ट करें? क्या मितेश गायब? आजा है। हाँ, ऐसे क्या ट्रांसफर होता है क्या वहां से? चलो, मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट. Starting though with, we'll do this one. This so we already done. So this is not the last. So this we have done. Just we have left with writing this. ये पढ़ा है ना हमने? Just we'll start with that. Then do the point which we don't know. क्या लिखा हमने? Illustrative indicators of impairment. इसका एग्जाम्पल्स भी बोला था आपने. ओके, याद है आपको तो अच्छा है. एक्सटर्नल इंडिकेटर्स नंबर 1, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल प्रोहिबिशंस, एंट्री ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन. इंटरनल इंडिकेटर में फिजिकल डैमेज टू द एसेट एंड कंटिन्यूड कैश लॉसेस. याद है ये पॉइंट? हाँ, इसके बाजू में एग्जाम्पल खुद से लिखने का. ठीक है, देन विल सी. द लास्ट पॉइंट इज दिस वन, इम्पेयरमेंट इन केस ऑफ व्हाट? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. कैन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैव इम्पेयरमेंट? मे और मे नॉट. करेक्ट नो? क्यों मे और मे नॉट? यू आर डिसकंटिन्यूइंग, नॉट नेसेसरी इट वॉज लॉस मेकिंग. ऐसा नहीं कि हर बार आप डिसकंटिन्यू करते हो तो लॉस मेकिंग है इसलिए आप डिसकंटिन्यू करते हो. करेक्ट नो? देन व्हाट इज द अदर रीजन यू मे डिसकंटिन्यू अदर देन लॉसेस? Other than losses, why you may discontinue? Because maybe that doesn't fit into the main focus of yours. It doesn't fit into your overall parameter. सुन रहे क्या आप? Like maybe like there were certain companies, I just forgot their names. There are some companies which was into you can say logistics. I think very famous logistics company, some Prakash Logistics or something like that. Patel Roadways. Patel Roadways was a very strong logistics company having a very you can say huge network of distributors and warehouse and things like that. Now then they shifted to something called as cold storage. So they diversified the business into cold storage, which went to do huge losses. सुन रहे क्या आप? So they stopped. Huge losses, 2-3 year continued losses, they stopped. That is a case of discontinuing operations due to loss. Suppose Patel Roadways now gets into manufacturing of containers. The manufacturing of containers start किया and manufacturing of containers is doing well. But उनको लग रहा है कि कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग के कारण उनका जो रोडवेज का बिजनेस है उस पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे. तो इवन दो कंटेनर इज डूइंग वेल, they want to discontinue container because they want to focus on roadways. So that is a case when a business is profitable, still you discontinue because you want to focus on your main business. Are you getting my point? That is why 2 reasons are there for discontinuing. तो अगर लॉस मेकिंग है तो इम्पेयरमेंट हो सकता है, नहीं है तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने का जरूरत नहीं है. तो एक बार देख लो क्या लिखा है. द approval and announcement of a plan for discontinuance is an indication that the assets attributable to the discontinuing operations may be impaired, or that an impairment loss previously recognized for those assets should have increased or reversed. Anything may happen. सुना आपने?
what they are saying कि डिसकंटिन्यूएंस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन, बोलो, इंडिकेटर. दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ impairment. Not compulsory, but indicator. You got the point? Yes. Important. Like for example, यहाँ पर continued losses is an indicator for impairment. Are you clear? Yes. But not necessary. Not necessary. It need not be. Why it need not be? That loss may be a temporary or it may be a one-time write-off. सुन रहे क्या? Temporary or a one-time write-off. So it is not क्या बोले, which will not impact in the next coming years. एक temporary slowdown है. Are you getting my point? Like for example, एक कंपनी है इंडिया में, सनसेरा इंजीनियरिंग करके, सुना है सर? नहीं, सनसेरा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, which does some part manufacturing for even टेस्ला. टेस्ला का भी कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है. अभी लास्ट एक साल में सनसेरा इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, सो इट हैड टेम्पररी लॉसेस. So doesn't mean it has to do impairment testing. This year again they have bounced back. Now this quarter is very very high. So ये quarter में they have done exceptionally well. मतलब in this quarter in the sense closing 31st March 25. So everybody has started re-rating Sansera. So last 3-4 days जब से result आया है, it's again bounced back. So now it is expecting to do well in this year. Are you getting my point? So test करने के लिए indicator है, कंपल्सरी नहीं कि है. हेलो, समझ में आ रहा है क्या आपको? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. तो एक बार रीड कर लो, ये क्लियर है क्या? ये हर एक वर्ड देख लेना. इंडिकेशन दैट द एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग मे बी इंपेयर्ड, पॉसिबल. और इंपेयरमेंट लॉस ऑलरेडी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग पहला किया था, अभी डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो पॉसिबल द लॉसेस हैव इंक्रीज्ड और इट हैज डिक्रीज. तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. जितना आप वर्ड्स को अच्छे से रीड करके समझ के पढ़ोगे, दैट मच इट विल बिकम इंटरेस्टिंग. दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस, नॉट examination wise only, professionally also. आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी टॉप एंड लोग हैं इंडिया में, टॉप एंड एकदम टॉप मोस्ट, टॉप 100 पीपल इन इंडिया, you check, they will be voracious reader. Voracious reader मतलब they have an habit of reading at least 2 hours a day. कितना? हाँ. When I am saying usually successful, top 100 means उनका नेटवर्क तो आप भूल जाओ, must be not less than 6 to 7,000 crores. तो उनको पैसे का कोई कमी नहीं है. सुन रहे क्या? ऐसा रोज वो 10 करोड़ खर्चा करेगा तो भी उसका एग्जॉस्ट नहीं होगा जिंदगी भर. तो पैसा तो एक दूर की बात है, बट वो लोग को लोग क्यों मान रहे हैं? एकदम वोरेशियस रीडिंग. वो रहेगा 75 ईयर ओल्ड, एकदम अभी भी 2 घंटा पड़ेगा. आप सुन रहे हैं? सो यू हैव टू रिलीज एवरी वर्ड. अच्छा, मे बी इंपेयर्ड, ओके, मतलब इंडिकेशन आया, बट जरूरी नहीं कि इंपेयर हुआ रहेगा, हुआ भी रहेगा, नहीं भी हुआ रहेगा. तो फर्स्ट टाइम इंपेयरमेंट है, वो फर्स्ट टाइम के लिए, अभी तक प्रीवियस इंपेयर नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिकेशन आया है, तो उनके बारे में बात कर रहा है, हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा. अब जिनका ऑलरेडी एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो चुका है, ये सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम है, तो उनका इंपेयरमेंट लॉस या तो बड़ा हुआ का या तो कम हुआ रहेगा. तो लाइन में उतना गहराई है, वो लॉ उनके बारे में बात कर रहा है जिनका आज तक इंपेयरमेंट नहीं हुआ, और उनके बारे में भी बात कर रहा है जिनका इंपेयरमेंट पहले भी हो चुका है.
ऐसा अपना दिमाग में एक स्टोरी लाइन बनना चाहिए. अच्छा अच्छा, that is the depth of reading. If you don't release it, no, it will be difficult to survive in any profession now. Forget CA. Any profession में सक्सेसफुल रहना है, रीडिंग इज अ मस्ट. वही इंपॉर्टेंट है. इंटेलेक्ट, दिमाग, सिर्फ दिमाग का काम का ही काम रहेगा आगे, या तो एकदम फिजिकल काम वाले का काम रहेगा. दो लोग सरवाइव करेंगे, जो एकदम हाई इंटेलेक्ट में ऑपरेट करते हैं या एकदम लो फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, उनको कम नहीं होगा. जो लोग बीच में जूझ रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं मैं दिमाग भी बराबर यूज नहीं कर सकता है, फिजिकल भी नहीं कर सकता है, so they will be held, they will be stuck. Getting my point? So that will be stuck. They will swing. Getting my point? अभी आपके लिए क्या है? You have no choice but to develop the intellect. That's why you are enrolled here. I hope that is a decision to work on the intellectual level. So if that's a choice, you have to do it. समझ में आ रहा है क्या? And it is not easy. ये जर्नी में क्या होगा? When you start reading, नींद आएगा. Common. क्यों नींद आएगा? Because it's a mental job. It will get tired fast. Physical से mental tiredness sets in fast. So you have to recognize कि मैं read कर रहा हूँ, नींद आ रहा है, तो what is the option? I wash my face, tune myself to read more. जैसे फिजिकली स्ट्रांग होना है तो लोग क्या करते हैं? जिम जाते हैं, योगा करते हैं, ऑल दो स्टफ दे डू. तो फर्स्ट टाइम का जिम गया रहेगा, व्हाट हैपेंस? द बॉडी पेन्स. सेकेंड टाइम यू, नेक्स्ट डे यू विल नॉट गो, बट व्हाट द इंस्ट्रक्टर से, नो नो यू कम, इट पेन्स, इट्स ओके. तो वैसे ही है, रीड करेगा, मेंटल टायर्डनेस आएगा, बिकॉज हम यूज टू नहीं है. तो व्हाट इज द ऑप्शन? 10 minutes read किया, wash your face, make it 15, make it 20, make it 30, make it 40, make it 1 hour, make it 2 hours. That's how the journey is. कोई भी पढ़ा लिखा बंदा से बात कर लो, यही बोलेगा, इट्स अ रूल. सुना आपने? प्लीज डू इट. ऐसा टिंगली टिंगली से नहीं होगा. दैट इज नॉट नॉलेज, इट इज टाइम पास. Real work is you have to read. So please do it. Easily पास हो जाए. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ. Easily पास हो जाएगा तुम. You do it. It's quite possible. It's very easy. And you'll have huge success. मैं सच्ची, I don't have words to express. Just a matter of 3-4 years of एकदम टिपिकल हार्ड वर्क विच यू डोंट लाइक. समझ में आ रहा है? गुड क्वालिटीज का क्या मालूम है? गुड हैबिट ना, एनी गुड हैबिट ना इज पेनफुल इन द बिगिनिंग, बट यू कंटिन्यू, इट इज बेनिफिशियल टू द एंड लाइफ टाइम. बैड हैबिट कैसा है मालूम है? इट इज प्लेजरेबल एट द इनिशियल बट पेनफुल एट द एंड. चेक कर लो आप. Any junk food, you need not teach a baby to eat junk food. It will eat automatically. That's a natural pleasure. But end to end, long term, देखो, it will suffer with obesity. It will get diabetes at the very early age. मेरे ख्याल से कल परसों का रिपोर्ट है. Young girls of around maybe less than 13-14 years, 21% of them are affected by diabetes. Less than 10-12 years. And 16-17% of boys are affected by diabetes in India. Forget the world. Because junk food is pleasurable at the beginning, but has a very cruelistic effect long term. But when you do a yoga, when you do a reading, when you do some good thing, it's painful, but it has a huge impact.
That's it. आपको सोचना चाहिए स्टार्टिंग में प्लेजरेबल है तो यू टू बी कॉशियस. सो टिंगली टिंगली करने को मजा ही आता है. किसको नहीं आता है? एवरीबडी लाइक्स. एनीबडी. द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन is not conscious, he may land up spending 1 hour. तो आप तो दूर का बात है. तो इट्स इनिशियल प्लेजर, बट उसका इफेक्ट देखो, 2 घंटा चला गया, आंख खराब हो गया, नींद नहीं आ रहा है. तो यू आर वेरी कॉशियस. इनिशियल प्लेजर गड़बड़ वाला. यू शुड नॉट हैव दोज हैबिट्स रेगुलरली. एक हफ्ते में टाइम पास किया ठीक है, बट नॉट रेगुलर. मीन्स आपको मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि आपका अभी पढ़ने का टाइम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं. ये डिफिकल्टीज आती है एंड आप समझो इनिशियली आपको तकलीफ हो रहा है तो समझो इट्स अ गुड हैबिट टेकिंग टाइम टू डेवलप एंड वेरी इजी टू लीव. बैड हैबिट इज इजी टू डेवलप, डिफिकल्ट टू लीव. इट्स कॉन्ट्रडिक्शनरी. एकदम कॉन्शियस इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग रहना चाहिए तो बहुत मजा आएगा. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड. हेलो. तो प्लीज पढ़ो, मैं सच्ची बोल रहा हूं. यू रिमेंबर मी आफ्टर 10 years 15 years. अगर आपने कर लिया रियली रिमेंबर, आए यार ये बोलता था बहुत, आई विल बी ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल एंड आई एम. यू डोंट गिव मी एनीथिंग, आई डोंट वांट. सो बट यू वुड बी हैप्पी. ठीक है? तो प्लीज करो यार, बिकॉज कभी कभी क्या, व्हेन आई सी यू डिस्ट्रैक्टेड नो, तो आई फील अरे यार क्या गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. Well, most of them are very innocent, come from a good family, and family has huge expectations on you. तो पूरा कर दो ना. ठीक है? ऐसे छोटा छोटा प्लेजर में मत जाओ. लॉन्ग टर्म. समझ में आ रहा है आपको? Getting it? So this our teachers taught, our parents taught, we imbibed something, so we're hugely grateful to them. Otherwise it's possible to teach for last 35 years. Because I started in 92. It's almost 25. 2025. I'm not 25. So 2025. So huge, no? So that's because of the huge training of my parents and my teachers, whomever I came in my life. तो लोग सब ने ऐसा बोल बोल के ऐसा ड्रिल कर दिया. ठीक है? वी आर डूइंग गुड. बराबर ना? हाँ तो करो ना. सब कुछ पॉसिबल है. ठीक है? तो डू इट, यू विल एंजॉय एंड प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है? भले लोग बहुत डराएगा, एआई आ गया तू मर जाएगा. ठीक है, सब मरेंगे, मैं भी मर गया, वांदा नहीं है. उतना थोड़ी खराब है यार. वी आर मच बेटर, नो? ठीक है, मे बी ओके, वी विल आल्सो कम. व्हाट देयर, नो रेजिस्टेंस. क्लियर ऑन इट? चलो नोट डाउन कर ले. राइट डाउन पॉइंट नंबर 10. नो? डाटा हेडिंग दे दो. इम्पेयरमेंट इन केस ऑफ discontinuing operations. Underline, next line. The approval and announcement of a plan for discontinuance is an indication that the assets attributable
to the discontinuing operations, that the assets attributable to the discontinuing operations may be impaired or that an impairment loss previously recognized for those assets should be increased or decreased. Underline the word may be impaired. May be impaired को underline करो, लिखो first time impairment testing. May be impaired को underline करके लिखने का first time impairment testing. Are you clear? Done. Next, point number 11. Illustrative indicators of impairment. We are using the word illustrative. Why the word illustrative? इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है. सुना है क्या आपने? ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यही लिस्ट है. इट्स अ लिस्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ. हेलो, इंडेस में भी सेम लिस्ट है जो एएस में भी है. तो बड़े बड़े कंपनीज भी यही लिस्ट यूज करते हैं. सो दे कैन नॉट से ये लिस्ट में नहीं था तो नहीं किया, तो इसलिए हेडिंग दिया है. क्या लिखा है? इलस्ट्रेटिव है. इसके अलावा भी तुमको लगता है करना है तो कर लो, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे लिस्ट में नहीं था तो क्यों किया. सब पॉइंट है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स. In that sub point 1, adverse technological changes. Adverse technological changes. Sub point 2, legal prohibitions. Legal prohibitions. Sub point 3, entry of a strong competitor. Sub point 4, market capitalization is less than the book value. Bracket net worth. Sub point 5, adverse effects of lockdown. So B part heading, internal indicators. B part heading, internal indicators. Sub point 1, physical damage to the asset. Physical damage to the asset. Sub point 2, sub point 2, continued cash losses. Done. सबका एग्जाम्पल लिख के रखो. एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या लिखेंगे? बोलो. सीडी टू पेन ड्राइव, नॉर्मल कैमरा टू डिजिटल कैमरा. नॉर्मल कैमरा से डिजिटल कैमरा आ गया ना.
Then legal prohibition, license ban हो गया, liquor license ban, sale of liquor is banned in certain states. Then entry of strong competitor, Jio. Market capitalization is less than book value, MTNL. MTNL एक प्रैक्टिकल केस है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है बुक वैल्यू से. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन, कोविड-19, पीवीआर को फर्क पड़ा, बहुत लोग को फर्क पड़ा, बट पीवीआर इज अ नोन एग्जांपल. डन, फाइन, क्लियर. चलो प्रॉब्लम सेक्शन में आ जाते हैं. लेट अस सी हाउ वेल यू डू द क्वेश्चंस. चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां से. क्या लेकर आए देखो. रेडी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. If there is an indication that an asset may be impaired, but the recoverable amount of the asset is more than the carrying amount of the asset, the following are true. क्या बोल रहे हैं? Recoverable amount is greater than the carrying amount. There is an indication that the asset may be impaired, but recoverable amount is more than the carrying amount. सोच लो, what should be the correct option? बोलो. How many say B? How many say A? A और B में फर्क क्या है? A में क्या बोल रहे हैं? No further action is required and the company can continue the asset in the book at the book value itself. और B में क्या बोला है? B में बोल रहा है the entity should review the remaining useful life, scrap value and method of depreciation and amortization for the purpose of AS 10. What is a better answer? बोलो. B. Why B is a better answer? A में बोल रहा है कुछ भी मत करो, इंपेयरमेंट नहीं है तो कुछ भी मत करो. कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी बोला है. हम क्या नहीं करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस को जीरो बोलेंगे, बट AS 10 का जो एप्लीकेशन है वो तो करना ही पड़ेगा ना. AS 28 ने बोला इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, तो डज इट मीन AS 10 का डेप्री नहीं करेंगे, अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे, रिमेनिंग लाइफ चेंज चेक नहीं करेंगे? दैट टू विल डू. दैट इज व्हाई B becomes a better answer. हेलो. हाँ. अभी why C is not an answer? They are saying either A or B. चॉइस थोड़ी है, B तो करना ही है. B नहीं करने का कोई चॉइस है ही नहीं. That's why C is not a correct answer. Entity should review the scrap value, method of depreciation, amortization for the purpose of AS 10. This is a smaller version of B. B में से एक दो चीज छोड़ दिया इसने. कौन सा चीज छोड़ दिया उसने? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ छोड़ दिया उसने. चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उससे कमजोर है ना. तो और बी एंड डी सिमिलर है, बट किसके पास ज्यादा कवरेज है? बी के पास ज्यादा कवरेज है, तो बी करेंगे. रिव्यू एवरी पॉइंट. आर यू गेटिंग? हाँ, ध्यान रखना. नेक्स्ट.
इसलिए स्लोली स्लोली रीड करो. सब 2-2 मार्क का है, टाइम स्पेंड करना चाहिए. 2 मार्क का है मतलब यू कैन यूज अप टू 3 मिनट्स. 15 क्वेश्चन आता है ना, 2 मार्क का 2 मार्क का ईच 30 मार्क्स के लिए. तो यू फॉर एवरी 1 मार्क इज 1.8 मिनट्स. तो 2 मार्क मतलब 3.6 मिनट्स हो गया. मतलब रफली 3 मिनट्स तो हम यूज कर ही सकते हैं. उतना भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी सफिशिएंट है. बट यू डू इट, डोंट से डू टिक टिक. 2 मार्क का है वो. आगे, इन केस गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी, द फॉलोइंग इज ट्रू. Apply bottom up test if the goodwill cannot be allocated to the CGU under review. Subpoint B, apply top down test if the goodwill cannot be allocated to the CGU under review. Apply both bottom up and top down if the goodwill cannot be allocated to the CGU under review. Apply either bottom up or top down if the goodwill cannot be allocated to the CGU. See, अगर नॉट एलोकेबल है तो क्या करते हैं हम? दोनों, बॉटम अप भी करते हैं, टॉप डाउन भी करते हैं. इसलिए मैंने बोला बहुत इजी हो जाएगा वो, लेकिन उसके पीछे स्टोरी बहुत है और टफ कॉन्सेप्ट है वो. इन केस कॉर्पोरेट एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी, द फॉलोइंग इज ट्रू. चेक कर लो, आप रीड कर लो. सेम है ना वो तो. इतना ही कि गुडविल की जगह पे क्या कर दिया, कॉर्पोरेट एसेट कर दिया. बस फर्क है क्या दोनों में? दोनों का ट्रीटमेंट इज द सेम, मीनिंग अलग है बट ट्रीटमेंट सेम है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? गुडविल रिटर्न ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स्ड. गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड विदाउट एनी कंडीशंस टू बी मेट. Goodwill can be written off. Written off can be reversed only if certain conditions are met. Goodwill written off can be reversed. क्या कंडीशन था मालूम है क्या? It is due to some external event which is not expected to occur again. And second condition, subsequent events. सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब उसके बाद हमने रिसर्च किया और एक नेचुरल प्रोडक्ट ढूंढा जिसके कारण क्या बोलते हैं, जितना भी लॉस हुआ था वो रिवर्स हो गया और आगे चेंज नहीं होगा वो. हेलो, सो दैट इज अ स्पेशल कंडीशन. क्लैरिटी? बस उतना ही है. इसका होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना, बिकॉज क्लास वर्क में 3-4 क्वेश्चन ही था, तो होमवर्क क्वेश्चन कर लेना. एंड कुछ डाउट रहेगा तो अगला बार मैं डिस्कस करूंगा. हेलो, लिमिटेड क्वेश्चन ही वो लोग के पास, तो इतना तो बराबर कर लेना, उसमें से भी आ सकता है. तो गेट मी द डाउट नेक्स्ट टाइम. आपको नोटबुक ले आओ, टेक्स्ट बुक कैरी करने का जरूरत नहीं. क्वेश्चन नंबर लेके आओ, मैं यहां पर दिखा के आपको डिस्कस करके क्लैरिफाई कर लूंगा. बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास वर्क में सिर्फ 4 है, पीछे 4-5 और है. 5-6 मोर आर दे. सो टोटल 10 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा. क्लैरिटी? हाँ, तो ये ध्यान रखना. दैट विल एंड दैट चैप्टर. डन, फिनिश्ड? किसी को कुछ पूछना है? कुछ एनी अदर डाउट, डिफिकल्टी? नथिंग. गुड. आगे बढ़े. चलो अगला हेडिंग दे दो.